आर्टिकल 37 ये बात कहता है डीपीएसपीज जो है ये फंडामेंटल टू गवर्नेंस है। रेफरेंस टू द इमरजेंसी प्रोविजंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, PIL कैन बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर पे कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में। Hello everyone, welcome again to Six Sigma IS. My name is Rajat and today we are going to discuss the next 25 most important question of polity and governance. So we have started this series of 100 most important questions which have very high probability of coming in this year exam, and today we are going to continue with the next 25 questions because this is the second video. It contains questions from 26 to 50. Alright, so let's not waste time because prelims is just around the corner. So let's get to it. Alright, so the first question is that with reference to the Constitution of India, consider the following statement. So before going to the first question, so what we are going to do is that I'm going to give you a few seconds to read this question and then solve it. Okay, so what I am expecting you to do is to first pause the video, attempt it on your own, and then we will be doing it together. All right, so you can just pause the video and attempt this question because now we are going to discuss it. So the first question is regarding the adoption as well as enactment of the Constitution of India. It talks about the Constituent Assembly also. So the first point says that the Constitution was adopted. It was adopted by the Constituent Assembly of India on 26th November 1949. Okay, so this is a correct statement. क्योंकि preamble has also said, preamble में क्या लिखा हुआ लास्ट में कि on this 26th day of November we do hereby adopt and enact this Constitution. ठीक है, तो वहां से आपको हिंट मिलना चाहिए. So first is the correct statement. Second statement says that the all provisions of the Constitution came into force on 26th November 1949 itself. So I mean this is a very easy question because this statement is an incorrect statement. क्यों? क्योंकि हम अपने रिपब्लिक डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? ऑन 26 जैन, और ऑन 26 जैन 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है 100% अडॉप्ट हुआ था, पूरी तरह से अडॉप्ट हुआ था. इसीलिए एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी वी अडॉप्ट द रिपब्लिक डे. थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिलिबरेटली चूजन टू कमेमोरेट द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज. ठीक है, दिस इज समथिंग विच बिलोंग्स टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. सो इन 1930 में पंडित नेहरू के इनिशिएटिव पे 1930 से each and every year on 26th of January every year it was celebrated as पूर्ण स्वराज डे. ठीक है, पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया जाता था ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके and spirit of freedom struggle is kept alive, and this is why this day was chosen. This day of 26 January 1950 was chosen, not the day on which Constitution was actually accepted by the Constituent Assembly. All right, so this is also a correct statement. So the right answer is C, 1 and 3 only, क्योंकि second is a wrong statement. Second statement says that with reference to the Constitution of India, consider the following statement. Okay, so you can just pause the video and then you can attempt it. First statement says that the Constitution embodies a balance between individual liberty and social justice. What does this mean? Individual liberty जो है वो in our constitution is under part 3 of the constitution, part 3 which is related to fundamental rights. Okay, so fundamental rights are protected by fundamental rights are protecting the individual liberty of citizen of India. Social justice is a concept which is in DPSP, Directive Principle of State Policies. It is under part 4 of the constitution. Okay, part 4 of the constitution में है ये, and there is a balance between them. ठीक है, this is something which has already been declared as a basic structure of the constitution. Supreme Court ने इसे basic structure भी declare किया हुआ है कि there is a balance between individual liberty and social justice. Second statement says that the constitution establishes constitutional supremacy.
सिमिलर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहां देखिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का, दूसरा कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है कि देयर इज अ फॉर्मल रिजिड डॉक्यूमेंट, जो कि रिजिड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसको अमेंड करना उतना आसान नहीं है। दिस इज वाई अ फॉर्मल रिजिड डॉक्यूमेंट इज देयर which ensures that the governance in the country follows this document which is called the constitution of that country। तो जो जिन देशों में एक फॉर्मल जो है एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द पीपल और उससे जो है एक संविधान निकल करके आया है, तो उस संविधान को जो है उस जिन देशों में वो संविधान होता है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट जो है अपनी मनमानी से उसे बदल नहीं सकती या उसके अगेंस्ट लॉ नहीं फॉलो कर सकती है, यानी कि एक सिंपल बिल पास करके उसे फॉलो नहीं कर सकते। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है उसे चेंज किया जा सकता है, बट एक सिंपल बिल से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा जो है कंसेप्चुअल पार्ट है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो इसलिए जो है ऐसे देशों में जहां पे एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और वो जो है रिजिड डॉक्यूमेंट होता है और पार्लियामेंट उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती है जनरली, तो फिर जो है उन देशों में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी कहा जाता है। और ऐसे देश कौन से? यूएसए एंड इंडिया। जो अदर एग्जांपल है वो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का है, यानी कि इन देशों में पार्लियामेंट पूरी तरह से सोवरेन होती है, यानी कि पार्लियामेंट जो है कोई भी किसी भी तरह के लॉ बना सकती है, इवन इफ इट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। ऐसा कौन सा देश है? ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है, इन ब्रिटेन देयर डू नॉट एग्जिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट जो है मतलब 1600 के पहले आ गई थी, मैग्ना कार्टा द फेमस एक्ट। तो उसके बाद से जो है वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल जो जो उन्होंने लॉज बनाए हैं, नॉर्मल लॉज रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और उनकी जो जुडिशियल जजमेंट्स वगैरह हैं, तो वही जो है एक तरह से उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का काम करती है। बट इन इंडिया दिस इज नॉट द केस, हेंस सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंडिया और यूएस में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी फॉलो होती है। थर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू प्रमोट यूनिटी while accommodating diversity। इसका क्या मतलब है? क्योंकि इंडिया इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट in India there is multiplicity of culture as well as there is multiplicity of governance also। ठीक है, इसीलिए हम 3 tier गवर्नेंस फॉलो करते हैं, द यूनियन लेवल, स्टेट लेवल एज वेल एज म्यूनिसिपैलिटी लेवल। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हम जो है इस देश की वेरियस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर पाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो नॉर्दर्न इंडिया है वो सदर्न इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है, जो नॉर्दर्न इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट से बहुत डिफरेंट है। इनफैक्ट इन नदर्न इंडिया जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टेट ऑफ राजस्थान, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देम। तो इसलिए जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो है यूनिटी को जो है प्रमोट किया है बाय मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, बट उन्होंने जो है स्टेट्स को भी काफ़ी पावर दी है, इसलिए एकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Now third question, now attempt the question. It is related to the preamble. So now we are going to do this. The term fraternity जो है in preamble, fraternity word के बाद क्या आता है? Fraternity ensuring dignity of the individual and unity and integrity of the nation। ठीक है, तो preamble में लिखा क्या हुआ है कि term fraternity implies a sense of brotherhood, okay, a sense of brotherhood ensuring dignity of individual and unity and integrity of the nation। ओके, सो इसका ये मतलब है कि फ्रेटर्निटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिविजुअल फ्रेटर्निटी की बात नहीं की गई है। द फ्रेटर्निटी विच इज रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ओनली इंप्लाई द इंडिविजुअल द फ्रेटर्निटी एट द लेवल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया ओनली, ओके, इट ऑल्सो इंश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज प्रिजर्व्ड। ऑलराइट, so the next question, so this is a correct statement। next statement says that the term secular implies that state maintains principal distance। राजीव भार्गव जी ने इस टर्म को दिया था, राजीव भार्गव
जिन्हें इस टर्म को दिया है, ओके, प्रिंसिपल डिस्टेंस का कंसेप्ट इन्होंने दिया है। प्रिंसिपल डिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि स्टेट जो है वो रिलीजियसली ब्लाइंड होता है, यानी कि स्टेट डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ओके। तो द टर्म सेकुलर, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। फ्रांस में जो है स्पेसिफिकली ये कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वहीं से जो है ये निकला भी था। सो दिस टर्म इज क्वाइट पॉपुलर इन फ्रेंच गवर्नेंस, बट इन इंडिया क्या है, क्योंकि वी आर सो डाइवर्स, वी आर सच अ डाइवर्स कंट्री, हेंस इट इज नॉट फिजिबल फॉर स्टेट टू बी रिलीजियसली ब्लाइंड। क्यों? क्योंकि जो है अगर ऐसा होगा तो जो कम्युनिटीज पीछे रह गई हैं, विच आर अ बिट डिप्राइव्ड कम्युनिटी, दोज कम्युनिटी कैन नॉट बी प्रमोटेड, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रमोशन एज वेल एज सबका साथ सबका विकास हो, तो उसके लिए जो है it became important that state understand that okay, there is equality, but then there is diversity also, and we need to respect as well as make policies which are promoting those diversity, okay. So this is again a correct statement. Term republic word का मतलब it signifies that the head of state is directly elected by the people of India or people of that state. तो रिपब्लिक वर्ड का ये मतलब होता है कि रिपब्लिक वर्ड मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, ही शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, ही शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल. So this direct election is not something that is mentioned in anywhere. So in India also the president of India is the head of state, not the prime minister. The president of India is the head of state. President is the head of state and he is not directly elected by the people. He is indirectly elected. क्योंकि आपने भी देखा होगा कि you have never voted for the president of this country, ठीक है. Despite that, since the constitution has came into existence, we always had a president. तो प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट को वो लोग इलेक्ट करते हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं. सो वी इनडायरेक्टली वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. तो रिपब्लिक में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, जरूरी नहीं डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं. इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. 29th क्वेश्चन, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन सिटीजनशिप. इंडियन सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो डील करता है विद इंडियन सिटीजनशिप. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट says, now you can just pause the video, attempt it, because now we are going to do it. First statement says that the Constitution of India provide detailed provision regarding loss of citizenship. Okay, so this is a incorrect statement कि loss of citizenship की बात तो की गई है, बट उसके डिटेल्ड प्रोविजंस कहाँ मेंशन्ड है? वो इस एक्ट में मेंशन्ड है. They are mentioned in the act of the Citizenship Act 1955. The Citizenship Act of 1955, it provides for renunciation of Indian citizenship by a person of full age and capacity. So second statement is a correct statement. क्योंकि जो इस एक्ट में ये चीज लिखा हुआ है कि जो a person who is of full age as well as capacity can declare his Indian citizenship as null. Okay, so correct option is option B. 30th question. Okay, just attempt it by pausing the video, because now we are going to do it. With reference to the writs, what are the writs under the Constitution of India? Under the Constitution of India, consider the following statement. Okay, so writs क्या होते हैं? Writs are written legal order. ठीक है, they are written legal orders होते हैं, उनको हम शॉर्ट फॉर्म में writs कहते हैं. तो हेबियस कॉर्पस की ये जो रिट होती है, ये क्या होती है? हेबियस कॉर्पस. ये whenever a person is detained by the state, then courts can issue a writ of habeas corpus that he need to be presented in the court. ठीक है, सपोज करिए आपको जो है आपके खिलाफ FIR हुई और आपको जो है पुलिस ने जो है डिटेन कर दिया है. अब जो है आपके बिहाफ पे हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स कैन फाइल अ रिट इन द कोर्ट, और फिर कोर्ट जो है पुलिस को जो है हेबियस कॉर्पस रिट इशू करेगी कि ओके, नाउ यू नीड टू प्रेजेंट दिस पर्सन इन कोर्ट. ओके, सो दैट इज हाउ दैट पर्सन इज बीइंग ब्रॉट इन द कोर्ट, एंड दिस रिट of habeas corpus becomes such an important writ for the protection of individual liberty of citizens of any country. ठीक है, इसलिए habeas corpus writ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है.
तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि रिट ऑफ जो रिट होती है ऑफ हेबियस कॉर्पस, ये बोथ दोनों तरह के लोगों के खिलाफ इशू की जा सकती है. पब्लिक के खिलाफ, पब्लिक अथॉरिटीज यानी कि पुलिस के खिलाफ, एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स. प्राइवेट इंडिविजुअल्स मतलब another person, if another person has illegally detained you also, even then court can issue a writ to that person कि okay, you need to present him in the court or you need to let that person go. The writ of mandamus का मतलब ये होता है कि it is mandatory. Mandamus means mandatory. okay, तो मैंडेटरी का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो ऑर्डर्स होते हैं या लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो होती तो हैं बट वो पेंडिंग रहती हैं कि जो है पब्लिक ऑफिशियल्स उस पर एक्ट ही नहीं करते हैं. तो इसलिए जो है कोर्ट को इशू करना पड़ता है कि नाउ यू हैव टू एक्ट इमीडिएटली ऑन दिस. तो उस केस में जो है रिट की जरूरत पड़ती है और ये दुर्भाग्य है कि इस रिट का इस्तेमाल कोर्ट्स को बार बार करना पड़ता है. द रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया to compel the performance of official duty. Okay, so president he is not bound by the writ of mandamus, and a writ of mandamus cannot be issued against a constitutional head of state like president or governor. president और governor के खिलाफ आप इशू नहीं कर सकते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ कर सकते हैं. जैसे कि डीएम के खिलाफ किया जा सकता है, एसपी के खिलाफ किया जा सकता है कि व्हाई आर यू नॉट एक्टिंग और व्हाई हैव यू एक्टेड इन दिस मैनर. ओके, सो इसलिए ये रिट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द पावर टू इशू रिट इट इज कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 and on high court under article 226. This is a correct statement. Okay, this is a correct statement. What it means that article 32 as well as article 226, they both have ensured that Supreme Court as well as the High Court of this country have the power to issue writs. Okay, so this is a correct statement. So the right option is statement A, the option A, which is 1 and 3 only. Okay, so this is the type of question which has been recently introduced in the UPSC, and it has become a favorite area also. So we are also going to be familiar with this type of question. So just pause the video and attempt it. Okay, so with reference to the significance of fundamental rights under the Constitution of India, consider the following statement. Okay, so first statement says that the fundamental rights, they form part of the basic structure of the Constitution. इसका क्या मतलब है? Basic structure क्या होता है? In the famous केशवानंद भारती case, of 1973, इस केस में जो है क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया, क्योंकि पार्लियामेंट व्हाट वाज पार्लियामेंट डूइंग बिफोर दैट. पार्लियामेंट हैज पास्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट through which they have brought drastic changes into the constitution. So Supreme Court has used this case to bring in a check on the amending power of the constitution. क्योंकि अगर कोई check in नहीं रहेगा पार्लियामेंट के ऊपर, तो पार्लियामेंट कैन इंटायरली रीड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. जो उनका मन करेगा वो प्रोविजन जो है उसमें इंक्लूड कर देंगे. इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरवीन्ड, and in 1973 using this case they have given the structure of the doctrine of basic structure of constitution. और उस डॉक्ट्रिन में ये बताया गया है कि there are certain provisions which are mentioned in the Constitution of India like fundamental right, they cannot be amended, they cannot be altered fundamentally. यानी कि उनको चेंज आप कर सकते हैं, बस ऐसा चेंज नहीं कर सकते हैं कि उनकी सोल एज वेल एज स्पिरिट इटसेल्फ गेट चेंज्ड. ओके, सो अमेंडमेंट इज पॉसिबल बट उनका सोल और स्पिरिट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइन रहना चाहिए. इसलिए जो है फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द बेसिक स्ट्रक्चर इंप्लाइज दैट इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट. This is a wrong statement. We have just now discussed that okay, it is possible to amend the constitution, even to amend the basic structure also. Those provisions which are included in the basic structure, but they cannot be fundamentally altered. यानी कि freedom of speech में आप चीजें ऐड करके उसे इंक्रीज कर सकते हो,
बट उसकी पावर को आप डिमिनिश नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट विल बी एन अल्टरेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू बताया। ओके, सो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी द स्टेटमेंट सी। Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. So the 32nd question, it is regarding directive principle of state policy, the DPSP. Okay, just pause the video, attempt it. Okay, now we are going to do this. So the first question says that the non-justiciable nature of DPSP reduces their practical relevance in the governance. तो non-justiciable nature का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जुडिशरी जो है इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, कि जो है वो कोई लॉ अगर पार्लियामेंट ने पास किया है तो जुडिशरी कैन नॉट डायरेक्टली यूज देम टू कॉन्ट्राडिक्ट कि दिस लॉ इज वायोलेटिंग द डीपीएसपी, हेंस वी आर डिक्लेयरिंग इट नल एंड वॉइड। बट वो काम डायरेक्टली नहीं कर सकती है, यानी कि ये एक जो है सी आर्टिकल 37 ये बात कहता है कि जो है डीपीएसपीज जो हैं ये फंडामेंटल टू गवर्नेंस है, डिस्पाइट नॉट बीइंग जस्टिसिएबल। ओके, दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस, यानी कि ऐसा नहीं है कि डीपीएसपीज की इंपॉर्टेंस कम है, ऐसा है कि स्टेट के पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि ये एडिशनल जो है राइट्स हम अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सकें। और जैसे जैसे स्टेट के पास रिसोर्सेज आते जाएंगे वैसे वैसे डीपीएसपी के जो नॉर्मल प्रोविजंस है वो धीरे धीरे जो है स्टेट इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 37 यही बात कहता है। इसका ये मतलब हुआ कि इससे जो है इसका रिड्यूस नहीं हुआ है उनका प्रैक्टिकल रेलेवेंस। ठीक है, ये रिड्यूस नहीं हुआ है क्योंकि आर्टिकल 7 ने स्पेसिफिकली ये बात कही है कि दे आर फंडामेंटल टू द governance, hence this is an incorrect statement. Second statement says that the directive principle has been used by judiciary to expand the scope of the fundamental right. This is a correct statement. ठीक है, क्यों? अब एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे फेमस उन्नी कृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन शुड बी अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बात, और बाद में जो है आर्टिकल 21A के अंडर जो है पार्लियामेंट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो सेकंड विल बी करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट स्टेट शैल अप्लाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। यही बात हमने अभी आर्टिकल 37 के अंदर डिस्कस की। दिस इज same thing which we have just now discussed in under article 37, and this is also a correct statement. So the right option is option A, 2 and 3. Okay, now you can just pause the video and look at it. So with reference to article 368, ये एक favorite area of the UPSC. ठीक है, UPSC in the past had consistently asked in prelims as well as in mains exam about article 300, about the provisions of the article 368. So the first statement, hence be very careful whenever you are dealing with this question, whenever you are reading this topic, because this is a very important topic, and here again we are going to discuss it. Article 366, it provides for the procedure as well as extent of parliament's power to amend the constitution. आर्टिकल 368 आर्टिकल का काम ही यही है कि इट हैज गिवन द पार्लियामेंट एबिलिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसा हम लोगों ने अभी दिस्कस किया था कि बिफोर केशवानंद भारती केस देयर वाज दिस थिंग दैट ओके, if parliament want to change the constitution, amend the constitution, they can do it by passing a constitutional amendment act. But केशवानंद भारती केस के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दिए। हेंस नाउ what is the position presently? The parliament can amend any provision of the constitution which is not a basic structure. ठीक है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं होगा, बाकी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। तो first statement says that article 368, it provides for the procedure as well as the extent of parliament's power to amend the constitution. ये एक incorrect statement है। क्यों? क्योंकि extent of parliament's power to amend the constitution, this was something, it is not mentioned specifically in this article. What is mentioned? Because this thing is now guided by the Keshwanand Bharti case and subsequent cases like SR Bomai case and other cases. Okay.
Second statement says that an amendment under Article 368 it require prior assent of the president before being introduced in parliament. Okay, so an amendment under Article 368, तो ये क्या कहता है कि ये अगर उसको अमेंड करना है तो इट रिक्वायर प्रायर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर बीइंग इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट. ओके, सो दिस इज अगेन अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Third statement says that certain constitutional amendment require ratification by at least half of the state of the legislature. This is a correct statement. इसका मतलब कि जो है ऐसे प्रोविजंस आप इंट्रोड्यूस करेंगे जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जो है वो चेंज होगा, तो ऐसे केसेस में हाफ ऑफ द स्टेट की असेंट की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर पे जैसे जीएसटी को जब 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू तो उस वहां पे जो है इसकी जरूरत पड़ी थी. ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर इनकरेक्ट. तो कौन कौन से इनकरेक्ट है? 1 and 2. ठीक है, now again you can just pause the video and attempt it. ठीक है, now we are going to do this. Statement 1 says that the federalism is part of the basic structure of the constitution. ठीक है, फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बात जो है एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन की कि यस, द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर. यानी कि Parliament cannot simply change the federal structure of the constitution just by passing a simple amendment to the constitution. Okay, so the federal structure has become sacrosanct in nature. Statement 2 says that the power of parliament to alter state boundary without the consent of the concerned state legislature, it indicates that India is not a truly federal polity. ठीक है, तो क्या इंडिया ट्रूली फेडरल नहीं है? तो ये स्टेटमेंट जो है ब्रॉडली जो है सही है. क्यों? क्योंकि ये चीज एक्सेप्टेबल है कि इंडिया उस तरह से फेडरल नहीं है जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स है, जैसा लोग समझते हैं. ठीक है, इंडिया में क्या है कि इंडिया जैसे यूएस क्या है, यूएस इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है. यानी कि स्टेट्स जो हैं वहां पे वो एक अलग एंटिटी की तरह एग्जिस्ट करते हैं बट दे आर गाइडेड बाय द सेंटर. ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया में यूनियन जो है वो ऑल पावरफुल है. इनफैक्ट आर्टिकल 3 जो है that it gives the power to the union government that it can fundamentally alter the existence of the states. So existence of the state is in the hand of union. Despite that India is a federal government. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया ट्रूली फेडरल नहीं है, इंडिया क्वाजी फेडरल है. ओके, व्हाट इज इंडिया? इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल. इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल पॉलिटी. ओके, सो दीज टू आर the second statement is again a correct statement. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? So option A या option B. So the correct statement will be option B because the statement 2 is not explaining article 1. अरे statement 2 is not explaining statement 1. ठीक है, तो statement 1 को जो कौन explain कर रहा है, statement 1 को explain करने के लिए हमें एसआर बोमई केस की जरूरत है. ठीक है, तो इसलिए जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. नाउ अगेन 35th क्वेश्चन, दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू. Okay, now let's discuss it with reference to the parliamentary system of India and United Kingdom. Okay, so here we are going to compare the system of governance in India as well as in United Kingdom. So वो क्या कह रहा है कि in India parliament operates under the supremacy of the constitution. ये हमने जस्ट अभी जो है बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया कि इंडिया में जो है पार्लियामेंट ऑपरेट्स अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. वेयर जबकि यूके में पार्लियामेंट इज सोवरेन, यानी कि यूके में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है. ये चीज हमने जो है बहुत ही डिटेल में डिस्कस की थी जस्ट नाउ. ओके, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट इन इंडिया जुडिशरी कैन डिक्लेयर लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल. है कि नहीं? कि यानी कि जुडिशरी कैन पास, सपोज गवर्नमेंट इज पासिंग अ लॉ एंड जुडिशरी फाइंड दैट इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो जुडिशरी कैन डिक्लेयर दैट लॉ एज नल एंड वॉइड. तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है. वेयर एज इन यूके
whereas in UK courts cannot invalidate an act of parliament. यानी कि यूके में कोर्ट्स कैन नॉट इनवैलिडेट, यानी कि यूके की पार्लियामेंट अगर कोई लॉ पास करती है तो उसे कोर्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि वहां पे पार्लियामेंट्री एक तो सोवरेनिटी है, दूसरी बात कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो सारी चीजें जो है वहां की पार्लियामेंट के थ्रू ही गाइड होती है। यानी कि ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें कौन सा करेक्ट है, वो है बी, यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगेन, ओके, so the first statement says that the recommendation of the finance commission, इसमें finance commission की बात की गई है, of India regarding distribution of taxes between center and state, they are binding on the government. यानी कि whatever the recommendation which are given by the finance commission of India, that is binding on the union government. And what recommendation finance commission gives? Finance commission generally give recommendation ki whatever money is being collected by the union government, how it need to be spent. यानी कि it finance commission also suggest कि how much grant you should give to the states for their own development, how much grant you should give to the municipalities as well as panchayat for their development, or on which areas government should focus on in the next 5 years, or how should government optimize its revenue sources. So these are the recommendations finance commission make. Hence finance commission is a very important body, and it is also a favorite topic of UPSC. ठीक है, तो the recommendation of the finance commission of India regarding distribution of taxes between, क्या ये binding है recommendations? तो नहीं, ये binding नहीं है, hence this is a incorrect statement. Second statement says that the proceeds of taxes levied and collected by the union but assigned to the state, they do not form the consolidated fund of India. तो ये जो चीज है, ये चीज जो है, ये आर्टिकल 269 में मेंशन्ड है। ठीक है, 269 के अंदर जो स्टैम्प ड्यूटीज हैं, दो स्टैम्प ड्यूटीज कैसे गवर्न करती हैं कि इन पे क्या है कि इन पे टैक्सेस लेवाई यानी लगाता यूनियन है, कलेक्ट यूनियन करता है, बट वो सारा जो पैसा है वो स्टेट्स को चला जाता है। तो स्टेट्स को चला जाता है, ये बात तो सही है, दे आर असाइन टू द स्टेट, यानी कि यहां तक सही है। इट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट यहाँ पे ट्रिक, यही ट्रिक पार्ट है क्योंकि ओके चला तो जाता है, बट क्या ये कभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट ही नहीं बनता है? सो यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इवन आर्टिकल 269 के 269 ए के अंडर जो जीएसटी आईजीएसटी जो लगाया जाता है, इवन दिस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो है पहले मतलब कलेक्ट किया जाता है बाय द सेंटर एंड देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। थर्ड स्टेटमेंट से, सेकंड इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट जीएसटी काउंसिल जो है इट मेक्स रिकमेंडेशन दैट आर बाइंडिंग ऑन बोथ सेंटर एंड स्टेट। तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होती हैं, अगेन दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बट क्योंकि जो है जो भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेती है इट इज टेकन बाय ड्यू कंसल्टेशन as well as due deliberation and there is an informal agreement between center and state। इसलिए जो है वो जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंडेशंस करती है वो जनरली एक्सेप्टेबल होता है, बट ये बाइंडिंग नहीं होती। ओके, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज 2 ओनली, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ 37th में, okay, with reference to the emergency provisions under the constitution of India, consider the following statement। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ठीक है। तो ये क्या कहता है पहला स्टेट? अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, ठीक है। यानी कि जब भी आप नेशनल इमरजेंसी को इन्वोक करेंगे देन दैट इमरजेंसी का रेजोल्यूशन जो है बोथ हाउसेज में पास होना चाहिए विद इन 1 मंथ, ठीक है। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। 44th Constitutional Amendment Act has made this thing mandatory
that if government is not able to pass the national emergency resolution within 1 month in both the houses, in Lok Sabha as well as in Rajya Sabha, and if Lok Sabha is dissolved, then in Rajya Sabha, and then whenever the Lok Sabha is reconvened with 1 month there also. So if they are not able to pass it, then the national emergency is revoked immediately. ठीक है, ये ऐसा किया गया था ताकि जो 1975 में जो मिसयूज हुआ था नेशनल इमरजेंसी का वो अब ना हो पाए. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेट 2 क्या कहती है? द रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल बाय बोथ हाउसेस इंश्योर्स देयर इज अ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव पावर टू डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी. ठीक है, यही बात हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस की कि टू इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मनमानी न कर पाए. 1975 में जिस तरह से जो है नेशनल इमरजेंसी के पावर्स को मिसयूज किया गया था, वो कंडीशन दोबारा ना आए, इसलिए जो है ये किया गया है. और वो किया कैसे गया है? बाय मेकिंग श्योर कि देयर इज अ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर देम. यानी कि तुम सिर्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, यू नीड टू मेक श्योर कि पार्लियामेंट ऑल्सो एग्रीज विद यू. ठीक है, तो इसलिए जो है सेकेंड स्टेटमेंट इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो रिक्वायरमेंट भी हो गई, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. क्योंकि जब आप स्टेटमेंट 2 पढ़ेंगे तो आपको स्टेटमेंट 1 का जो है वो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. ठीक है, तो इसलिए जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स गो टू द 38th क्वेश्चन. अगेन just attempt them. Okay, so the first part of the question says that the president is elected. President को जो elect किया जाता है, he is elected by he or she is elected by an electoral college consisting of all members of both houses of parliament and members of the state legislative assembly. ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है हाउस ऑफ ऑल द मेंबर्स, सारे मेंबर्स जो हैं ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है. ठीक है, क्योंकि ऑल मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. In the election of President of India, nominated members which are present in state legislature as well as in Parliament of India, they do not participate in that election. ठीक है, इसीलिए he is elected by elected members of the Parliament as well as state legislative assembly. Second statement says that a person must have completed 35 years of age and should be qualified for election as a member of Lok Sabha to be eligible for the office of president. To be eligible for the office of president. ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? सो क्या ये स्टेटमेंट सही है? द सेकंड स्टेटमेंट. सो ये यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, यानी कि आपकी मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए एंड यू शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा ऑल्सो. यानी कि आपकी एज 35 होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन में क्या होता है कि मिनिमम एज 25 ईयर्स है. तो इसलिए जो है अलग से ये चीज मेंशन की गई. दिस थिंग हैज बीन मेंशन्ड सेपरेटली दैट यू नीड टू बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज एंड यू शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा टू बी एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ president. Okay, so again this is a correct statement. Third statement says that the value of vote in the president's election, it is uniform. Value of vote is uniform for all members of the parliament and state legislative assembly. So हम जानते हैं ये बात कि जो है this is an incorrect statement, क्योंकि आर्टिकल 55 ने जो है वो ये बात मेंशन की हुई है कि किसका कितना शेयर होगा, और वो शेयर जो है मतलब स्टेट एक एमएलए का शेयर जो होता है वो सब्सटेंशियली लेस होता है एक एमपी के शेयर से. ठीक है, तो इसलिए जो है ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन. ठीक है, ये चीज जो है आर्टिकल 54 में मेंशन्ड है. आई थिंक आर्टिकल 54 में ये चीज फर्स्ट स्टेटमेंट की चीजें मेंशन्ड है, इसलिए वो जो है करेक्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट और आर्टिकल 55 जो है वो इसे मेंशन करता है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
अब हम बजट की बात करेंगे। बजट 1 फरवरी को हर साल जो है इंट्रोड्यूस होता है, तो बजट के प्रोसीजर और एंड ओवर बजट ऑल्सो यूपीएससी हैज आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस both with regard to the legal aspect of it, that is in polity and governance, as well as economic aspect of it, that is in economics. So first statement says that the annual financial statement, it is laid before both houses of parliament under article 112 of the constitution. आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले करने की पावर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट द राज्यसभा मस्ट रिटर्न द फाइनेंस बिल, ठीक है, फाइनेंस बिल विद इन 14 days with or without recommendation. Now generally we know that only a money bill, केवल मनी बिल में ये कंडीशन आती है वेयर राज्यसभा नीड टू रिटर्न अ मनी बिल विद इन 14 days. बट जो है क्या फाइनेंस बिल के केस में वो कंडीशन है? फाइनेंस बिल जो है वो आर्टिकल 117(1) एंड 117 सब पार्ट 3 से जो है डील किया जाता है। तो क्या ये ऐसा है? सो टेक्निकली जो है ये बात है कि टेक्निकली फाइनेंस बिल जो है उसको 14 days में रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो है वो उसे राज्यसभा जो है 14 days में नहीं, वो जितने दिन में चाहे उतने दिन में पास करे और वो अमेंड भी कर सकती है, ये पावर्स होती है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस बिल। बट क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ बजट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बजट प्रोसेस की बात अगर कर रहे हैं तो इस केस में होता ये है कि जो है जब भी फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो स्पीकर उसे रेटिफाई करता है और उसको जो है मनी बिल के में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए इसका नाम फाइनेंस बिल होता है बट ये एक्चुअली मनी बिल हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है टेक्निकली दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है बुलेटिन के बारे में, कि ये एक प्रोसेस है बाय विच द रिमेनिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट आर पुट टू वोट विदाउट डिटेल्ड डिस्कशन। दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। बुलेटिन के बारे में आपने पढ़ाई हुई है, फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ऑन द लास्ट डे ऑफ द बजट सेशन whatever things which are not discussed, whatever things which are not duly voted on, they all are combined together and government passes the resolution. The bill is the bulletin is passed, and then it is considered कि okay, everything is, all the provisions of the money bill, the budget, the finance bill, they all get passed in the parliament. Okay, so third is again a correct statement. ये दिया इसलिए गया है ताकि जो भी पावर में हो उस गवर्नमेंट को जो है उसमें प्रॉब्लम ना हो, मतलब उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ना हो, यानी कि अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट को हाईजैक करके गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पावर्स को, फाइनेंशियल एबिलिटी टू वर्क ऑन द ग्राउंड को ना रोक सके, ठीक है। तो इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 40th क्वेश्चन क्या कहता है कि अब हम पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करेंगे, पब्लिक अकाउंट कमिटीज की बात करेंगे। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट द पब्लिक अकाउंट कमिटी एग्जामिन्स, पब्लिक अकाउंट कमिटी का क्या काम होता है? इट एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, क्योंकि पीएससी जो होती है उसका मेन काम यही होता है कि वो जो है जो सीएजी की रिपोर्ट्स को जो है उन्हें पढ़ती है, उन्हें डिटेल में एनालिसिस करती है और फाइंड आउट करती है, रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि व्हाट दे कैन डू, हाउ दे कैन ऑप्टिमाइज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नेंस। Second statement says that the committee consists only of members from the लोक सभा। तो क्या जो है पीएससी में सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं? तो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि पीएससी में 22 मेंबर्स होते हैं, 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं, 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। So this is an incorrect statement. Third statement says that the chairperson, जो चेयरपर्सन है ऑफ द कमिटी, इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। चेयरपर्सन को, जो चेयरपर्सन है पीएससी के, उनको कौन अपॉइंट करता है? ही इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट सेज दैट द कमिटी इंश्योर्स दैट पब्लिक मनी इज स्पेंड इन अकॉर्डेंस विद द अथॉरिटी ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज वाई पीएससी हैज बिकम सच अ क्रिटिकल इन द फंक्शनिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड।
जो भी डेमोक्रेसी जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं, गवर्नेंस को फॉलो करती हैं, वहाँ पे पीएससी होती हैं और दीज कमिटी आर वेरी वेरी पावरफुल, अमंग द मोस्ट पावरफुल कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट। इनका काम क्या होता है कि ये पब्लिक मनी के ऊपर ध्यान रखती हैं, और क्योंकि इसमें जो है मेंबर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एज गवर्नमेंट की पार्टी से मेंबर होते हैं एज वेल एज अपोजिशन के मेंबर होते हैं, इसलिए बहुत ही हेल्दी डिबेट्स होती हैं इनमें। उनके रिकमेंडेशन भी सो मच फुल ऑफ फैक्ट एज वेल एज आइडियाज होते हैं कि यू विल बी सरप्राइज्ड एंड यू विल लव देम। क्यों? क्योंकि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इन योर आंसर राइटिंग। ठीक है, तो कमिटी इंश्योर्स दैट द पब्लिक मनी इज स्पेंड इन अकॉर्डेंस विद द authority granted by the parliament. This is a correct statement. So the correct option here is option B. 1, 3 and 4 are correct. Second is an incorrect statement. Alright, so let's go to the 41st question. Okay, so अब जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है? सो जो जुडिशियल रिव्यू का ये मतलब होता है कि सपोज पार्लियामेंट है, देयर इज अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने जो है एक बिल पास किया, अब इसको जो है प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, अब ये एक्ट में बदल गया। ओके, नाउ डज दिस एक्ट फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, ये कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने इलेक्टोरेट के लिए, गवर्नमेंट जो है अंडर पब्लिक प्रेशर कुछ ऐसे लॉज पास करे जो कि जो है लॉन्ग टर्म में वो या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो या लॉन्ग टर्म में जो है वो जो है डेट्रीमेंटल साबित हो इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो ऐसे केसेस में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आता है। जुडिशियल रिव्यू का यानी कि ये रिव्यू कौन करता है? ये पावर होती है इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू करती हैं, यानी कि वो रिव्यू करते हैं कि वेदर दिस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, तो इसलिए जो है ये चीजें हम नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट 1 सेज दैट द जुडिशियल रिव्यू ये एक इसेंशियल फीचर है, ये एक इसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो क्या जुडिशियल रिव्यू जो है वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है? तो यस, ये है। और ये जो है केशवानंद भारती केस में ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया था कि जो है जुडिशियल रिव्यू जो है इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पार्ट से द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इट इनेबल्स द जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव एक्शन भी, ना सिर्फ एक बिल, बल्कि अगर सरकार ने कोई ऑर्डर भी दिया, नॉर्मल ऑर्डर, जिसके थ्रू जो है वो कोई ऐसा काम करना चाहते हैं विच इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशरी कैन इंटरवीन एंड दे कैन पास रिट, वेरियस रिट्स थ्रू विच they can regulate the actions of the government as well as the power of the government. तो ये भी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड सिंस दिस स्टेटमेंट इज राइटली एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1, hence correct option will be option 1. Okay, so we are going towards the 42nd question. 42nd question is about PIL. It is about PIL in India. Okay, so statement 1 says that PIL can be filed directly in the Supreme Court under Article 32. Under Article 32. Article 32 के अंदर क्या एक PIL डायरेक्टली फाइल की जा सकती है? स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि द स्कोप ऑफ द PIL हैज बीन एक्सपेंडेड बाय द जुडिशियरी टू इंक्लूड इश्यूज सच एज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बॉन्डेड लेबर. ओके, सो आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. Okay, so the first statement says that the PIL can be filed directly in the Supreme Court. Supreme Court में क्या directly PIL फाइल की जा सकती है? Under Article 32 for the enforcement of the fundamental rights. Okay, so PIL जो है Supreme Court में specifically for the enforcement of the fundamental right directly जो है वहाँ पे फाइल की जा सकती है. यानी कि अगर किसी भी एक ऑर्डिनरी सिटीजन का जो है फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो ऐसे केस में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्टली इंटरवीन कर सकता है अगर आप उसको जो है एक PIL देते हैं. इन अदर केसेस, जैसे कि अगर आपके नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वायलेट हो रहे हैं,
तो फिर आपको पहले हाई कोर्ट जाना होगा एंड देन यू नीड टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप जा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट द स्कोप ऑफ PIL हैज बीन एक्सपेंडेड बाय द जुडिशरी टू इंक्लूड इश्यूज सच एज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन देती है, एंड बॉन्डेड लेबर। तो अगेन दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है MC मेहता केस। MC मेहता केस, ये जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जो है ये बहुत ही फेमस केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए जो है इसको ध्यान से सुनिएगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इन्होंने जो है एक PIL फाइल की थी, जिसके बाद जो है बहुत सारे इन्वायरमेंटल जो है रेगुलेशंस जो है वो इम्पोज किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गवर्नमेंट को बोला था कि जो है इस तरह से ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज जो है वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये केस जो है ये बात बता रहा है कि स्टेटमेंट 2 इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। ओके, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जो है स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दे आर इंडिपेंडेंटली करेक्ट स्टेटमेंट। इसलिए जो है ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से करिएगा। ओके, लेट्स गो टू द 43rd क्वेश्चन। 43rd क्वेश्चन इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर पे कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में, और गवर्नर की पोजीशन जो है ऐसी है जहाँ पे देयर इज लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन आल्सो। तो अब क्योंकि आपके पास डिस्क्रिशन ज़्यादा है, तो इसलिए जो है वहाँ पे जो है चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि यूपीएससी उसको जो है ट्विस्ट एंड टर्न करके आपसे जो है ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। First statement says that the governor, now you can just attempt this question. Okay, so the first statement says that the governor is bound to act on the aid and advice. Governor is bound to act on the aid and advice of the Council of Ministers in all matters, except those where the Constitution specifically require their discretion. तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आर्टिकल 163 ये बात कहता है कि जो CM है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है पूरी, वो जो है वो गाइड करेगी जो है गवर्नर को थ्रू देयर एड एंड एडवाइस, ठीक है। और जो है सेकंड स्टेटमेंट ये बात कहता है कि द गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये भी अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। आर्टिकल 200 जो है ये बात कहता है कि there can be certain articles which are violating the spirit of the constitution or which are going beyond the jurisdiction of the state legislative assembly. तो उन केसेस में जो है गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन सेज दैट थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन। रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ये एक नेसेसरी प्री कंडीशन है फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ये भी एक इमरजेंसी का क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 356। तो जब भी हम स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे या प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए गवर्नर की जो रिपोर्ट है वो एक नेसेसरी कंडीशन होती है। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि विदाउट आस्किंग फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। ओके, सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 1 and 2 only, hence option A is correct. Now again 44th question. Okay, with reference to a bill reserved for the consideration of the president. Okay, who is reserving this bill? A bill reserved for the consideration of president, governor. Governor is reserving this bill for the consideration of the president. Under the Constitution of India, consider the following statement. First statement says that when a bill is reserved for the governor, the president may either give his assent or withhold his assent to the bill. यानी कि when a bill is reserved by the governor, अब गवर्नर ने एक बिल को रिजर्व कर दिया है फॉर द प्रेसिडेंट, तो क्या प्रेसिडेंट कैन ईदर गिव हिज असेंट और विदहोल्ड हिज असेंट? तो यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि अगर जो है प्रेसिडेंट ने, गवर्नर ने एक बिल जो है
प्रेसिडेंट को दी है, तो प्रेसिडेंट को दी है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि he can either give his assent to the bill or he can withhold his assent to the bill. Second statement says कि in the case of a bill reserved for the president, the constitution does not prescribe any time limit within which president must act on such a bill. This is again a correct statement. यानी कि जब भी जो है गवर्नर एक बिल को रिजर्व करेंगे फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को के ऊपर कोई टाइम लिमिट इम्पोज नहीं की गई है, ठीक है। प्रेसिडेंट जितना टाइम लेना चाहे उतना टाइम ले सकते हैं, ही कैन कीप इट पेंडिंग, यानी कि पॉकेट वीटो है उनके पास एक तरह से। तो यहाँ पे पॉकेट वीटो की बात की गई है, वीटो की बात की गई है। Okay, third statement says that the president may direct the governor to return the bill to the state legislature for the reconsideration. Again, this is again a correct statement. ठीक है, तो गवर्नर के पास, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि he can give his assent or he can just return the bill for reconsideration of the state legislative assembly. Okay, so तीनों statement correct है, hence option D is the correct option. 45th क्वेश्चन क्या कहता है कि विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। अब हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो के जजेस के अपॉइंटमेंट तो हमेशा ही न्यूज में रहती है, बट हाई कोर्ट के जजेस की भी यहाँ बात की गई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी हाई कोर्ट जज ही is appointed by the president after consultation with the chief justice of India and the governor of the state of the concerned state. ठीक है, ये बात कह रहा है कि हर एक जो जितने भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट जितने भी हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, वो ऐसा करते हैं आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है एंड द गवर्नर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट जज, अब क्योंकि अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट जज अदर देन द चीफ जस्टिस, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, अगर हम उनको छोड़ के बाकी किसी की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस जो है वो भी रिक्वायर होता है। यानी कि अगर हम चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर रहे हैं तब तो आप, क्योंकि वहां पे कोई चीफ जस्टिस है ही नहीं स्टेट में, तो फिर जो है आप किससे ही कंसल्ट करोगे। बट अगर आप एक नॉर्मल जज को, जज ऑफ हाई कोर्ट को जो है आप अगर अपॉइंट करना चाह रहे हो, तो अब यहाँ पे चार लोग जो है लूप में आ जाएंगे। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लूप में आ जाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाएंगे, गवर्नर आ जाएंगे, एंड जो है चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट हाई कोर्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द रिकमेंडेशन मेड अंडर द कोलिजियम सिस्टम इज बाइंडिंग। ठीक है, अब ये कोलिजियम सिस्टम क्या है? जैसे ये एक चीज है, this is something it is not mentioned in the constitution of India, ठीक है। and then what happened is during 70s, during 80s, तो जो है जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, तो वो क्या किए कि वो एक्टिवली इंटरफियर करने लगे इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि एक आइडियोलॉजिकल जुडिशरी आ जाए इंडिया में जो एक सर्टेन आइडियोलॉजी को फेवर करे, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक कोलिजियम सिस्टम को का इवोल्यूशन किया। और ये कब कैसे किया? ये उन्होंने जो है सेकंड एंड थर्ड जजेस केस में किया, थर्ड जजेस केस में किया। ठीक है, सेकंड जजेस केस में क्या कहा कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं बट ही विल डू इट ओनली विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को आप जो है अपॉइंट कर सकते हैं बट ओनली व्हेन यू आर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये कंसल्टेशन अलोन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा, टू जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और उनके टू सीनियर मोस्ट जजेस होंगे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उस समय के। फिर जो है थर्ड जजेस केस में ये हुआ कि थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 3 लोगों का कोलिजियम नहीं बनेगा, 5 लोगों का कोलिजियम बनेगा, यानी कि 4 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। तो ये लोग जो है 5 लोग मिलकर बनाएंगे। ठीक है, तो वही ऐसे ही केस जो है हाई कोर्ट के लिए भी इवॉल्व किया गया है। और यहाँ पे जो है ये कह दिया गया कि जो थर्ड स्टेटमेंट है कि द रिकमेंडेशन मेड बाई कोलिजियम सिस्टम दे आर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो देखिए ऐसा है कि जो रिकमेंडेशन है वो जनरली बाइंडिंग होती है बट एब्सोल्युटली बाइंडिंग नहीं होती है।
ठीक है, यानी कि अगर अगर जो है कोलिजियम ने 3 नाम भेजे हैं तो ऐसा हो सकता है कि 2 नाम जो है वो प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करें और एक को ना करें, इसलिए बाइंडिंग नहीं होती है। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। ठीक है, लेट्स गो टू द 46th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द सबऑर्डिनेट कोड, अब हम हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोड की तरफ जा रहे हैं। विद रेफरेंस टू द सबऑर्डिनेट कोड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला, लेट्स, आई एम जस्ट गिविंग यू द टाइम टू डू दिस फर्स्ट। So the first statement says that the control over district court and subordinate court, thereto it is vested in the high court of the state. ठीक है, यानी कि कंट्रोल जो होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो होता है इन द हैंड ऑफ हाई कोर्ट. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. Second statement says that the appointment of the district judge, it is made by the governor in consultation with the state public service commission. तो क्या जो है अपॉइंटमेंट जो होती है डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट, वो गवर्नर करते हैं इन कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. तो क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही जो है लोअर जुडिशरी का एग्जाम कराता है. ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो लोअर जुडिशरी का एग्जाम कराता है, इसीलिए ये एक ट्रिक क्वेश्चन हो जाता है. तो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज इट इज मेड बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट से कंसल्ट करते हैं, ना कि जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करते हैं. ठीक है, तो ये चीज जो है आर्टिकल 233 में भी क्लियरली मेंशन है. ठीक. थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट अ पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और द स्टेट कैन बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज इफ ही हैज बीन एन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 7 years. यानी कि a person who is an advocate for 7 years, he can also be recommended by the high court to be appointed as a judge of the high court. ठीक है, this is again a correct statement. So the right option is option A, यानी कि statement 1 and 3 are correct statement. Okay, let's go to the 47th question. 47th question क्या कहता है कि with reference to the powers and functions of the Election Commission of India, with reference to the powers and functions of the Election Commission of India, consider the following statement. तो Election Commission has been in the news a lot of times, क्योंकि अभी इलेक्शंस हुए भी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहे, बहुत सारा वायलेंस भी हुआ, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फर्स्ट स्टेटमेंट से नाउ यू कैन जस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. So the first statement says that the Election Commission has the power to supervise, they have power to supervise, direct and control election of Parliament, State Legislature and the offices of President and Vice President. So this is a correct statement. ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे कंडक्ट इलेक्शन फॉर फोर ऑफिसेज. ओके, फॉर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस president. Okay, for other elections like panchayats, municipalities, there is a state legislative assembly or state election commission. State election commission का काम होता है कि वो जो है इलेक्शन कराते हैं for municipalities as well as for state panchayats of the state. So second statement says that first is a correct statement. Second statement says कि election commission जो है, इलेक्शन कमीशन वो एडवाइजेज द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अदर देन डिफेक्शन. क्योंकि डिफेक्शन का मैटर तो जो है वो स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द हाउस यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास होता है. तो उसके अलावा जो बाकी डिस्क्वालिफिकेशंस है वहां पर इलेक्शन कमीशन जो है वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को. तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि इलेक्शन कमीशन के पास बाकी डिस्क्वालिफिकेशन की पावर होती है, बट जो डिफेक्शन है, जो 10th शेड्यूल के अंदर डिफेक्शन की पावर है, वो जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है. थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल, इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग एंड रिवाइजिंग इलेक्टोरल रोल फॉर ऑल इलेक्शंस इन द कंट्री. ठीक है, फॉर ऑल द इलेक्शंस इन द कंट्री. सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है वहां पे जो इलेक्टोरल रोल इशू किया जाता है, ऑल्दो वो लिया जाता है फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट दैट इज इशूड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन. हेंस थर्ड इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट.
करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी। ठीक है, 48th क्वेश्चन क्या कहता है कि विद रेफरेंस टू द सिक्स्थ शेड्यूल, with reference to the sixth schedule area under the Constitution of India, consider the following statement. जो provision है of the sixth schedule, it applies to all tribal regions. It applies to all tribal region in the northeastern state of India. यानी कि जो provision है of the sixth schedule, it applies to all the tribal regions in the northeastern state of India. ठीक है, तो क्या ये all the tribal regions पे apply करता है? तो नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 4 स्टेट्स में है। जो 6 शेड्यूल स्टेट्स हैं वो सिर्फ 4 हैं। ठीक है, एक तो मेघालय है, असम है, और फिर जो है मिजोरम है और त्रिपुरा है। ठीक है, ये 4 स्टेट में जो है वो दे आर इन पार्ट ऑफ 6 शेड्यूल, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर पार्ट ऑफ 5th शेड्यूल। ठीक है, तो इसलिए जो है the first statement becomes an incorrect one. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है अंडर द 6th शेड्यूल, दे हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट सच एज लैंड, फॉरेस्ट एंड कस्टम। ठीक है, तो 6th शेड्यूल के अंदर जो कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं, ठीक है, दीज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को बनाने का पर्पज ही यही है कि दे कैन they have some degree of autonomy to follow their own culture, their primitive way of living. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उनके कल्चर को, इसलिए जो है उनको जो है स्पेशल पावर्स दी जाती है टू रेगुलेट देयर लैंड, फॉरेस्ट एंड देयर कस्टम। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द गवर्नर हैज नो रोल इन मॉडिफाइंग और अल्टरिंग द एरियाज अंडर autonomous district council once they are constituted. This is an incorrect statement, क्योंकि 6th शेड्यूल के अंदर जब भी जो है मॉडिफिकेशन या अल्टरेशन ऑफ एरिया किया जाता है तो वो जो है वो गवर्नर जो है वो उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन 3 विच इज 2 ओनली। ठीक है, अब जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे विच इज ऑफ दिस वीडियो ओनली। ठीक है, अब हम लोग 49th क्वेश्चन देखते हैं। इट इज रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या कह रहा है? द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 90। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को एज अ फंडामेंटल राइट जो है डिक्लेयर किया है। Second statement says that the Constitution provides for incorporation, regulation and winding up of the cooperative society under Part 19B. ठीक है, तो सेकंड पार्ट ये कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो प्रोविजन बताए हुए हैं फॉर इनकॉर्पोरेशन, फॉर रेगुलेशन एज वेल एज वाइंडिंग अप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो क्या ये सच है? तो यस, दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो है आर्टिकल 243 के अंदर फ्रॉम ZH to 243 ZT, ये जो आर्टिकल्स हैं ये डील करते हैं विथ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इनमें जो इनका रेगुलेशन, उनका इनकॉर्पोरेशन और वाइंडिंग अप सब कुछ मेंशन्ड है। सेकंड स्टेटमेंट इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द प्रोविजन ऑफ पार्ट 19B दे अप्लाई यूनिफॉर्मली टू बोथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। ठीक है, दो तरीके के कोऑपरेटिव होते हैं, एक तो मल्टी स्टेट होते हैं जो मल्टीपल स्टेट में होते हैं, और कुछ सिंगल स्टेट होते हैं। ठीक है, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑपरेटिंग विद इन अ सिंगल स्टेट। तो क्या इन दोनों पे ही आर्टिकल ये आर्टिकल 243 ZH से ZT तक जो है वो अप्लाई करता है? तो ये जो है ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कि जो ये प्रोविजंस है वो सिर्फ मल्टी स्टेट पे करते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है, इसलिए जो है वो उसकी पावर यूनियन गवर्नमेंट को नहीं दी गई है। इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि लॉ कमीशन, 23rd लॉ कमीशन का गठन रिसेंटली किया गया है। 23rd लॉ कमीशन का गठन किया गया है, इसलिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द लॉ कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लॉ कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इस्टेब्लिश्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये नॉर्मल जो है मतलब ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट के थ्रू बनती है, तो इसलिए जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। ओके, फिक्स टेन्योर के लिए बनाया जाता तो रिकमेंड लीगल रिफॉर्म। ये जो है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट। जनरली 2 या 3 साल के लिए जो है लॉ कमीशंस बनाए जाते हैं और उनका स्पेसिफिक जो है टाइम में वो जो है चूज करते हैं कि ठीक है दीज आर दी एरियाज वी आर गोइंग टू वर्क, और उन एरियाज में वो जो है लीगल रिफॉर्म्स को जो है रिकमेंड करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन, recommendation of the law commission they are binding on the government. Third statement says recommendation of the law commission are binding on the government. then again जो है ये एक incorrect statement है। क्यों? क्योंकि recommendations जो है वो जनरली एडवाइजरी इन नेचर होते हैं, दे आर नॉट बाइंडिंग इन द नेचर। ठीक है, सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 2 ओनली। ठीक है, so these were the so now we have completed in this series up to 50 questions. So we are going to meet very soon where we will be discussing questions from 51 to 75, and before the exam we will be completing this series of 100 questions. Okay, so I request you all to subscribe to the channel, hit the bell icon, as well as join our Telegram community for any personal clarifications that you have. All right, I will see you soon. Thank you. Right to form cooperative society को as a फंडामेंटल राइट जो है डिक्लेयर किया है। सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर पार्ट 19B। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट ये कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो प्रोविजन बताए हुए हैं फॉर इनकॉर्पोरेशन, फॉर रेगुलेशन एज वेल एज वाइंडिंग अप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो क्या ये सच है? तो यस, दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो है आर्टिकल 243 के अंदर फ्रॉम ZH टू 243ZT, ये जो आर्टिकल्स हैं ये डील करते हैं विथ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इनमें जो इनका रेगुलेशन, उनका इनकॉर्पोरेशन और वाइंडिंग अप सब कुछ मेंशन्ड है। सेकंड स्टेटमेंट इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द प्रोविजन ऑफ पार्ट 19B दे अप्लाई यूनिफॉर्मली टू बोथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। ठीक है, 2 तरीके के कोऑपरेटिव होते हैं, एक तो मल्टी स्टेट होते हैं जो मल्टीपल स्टेट में होते हैं, और कुछ सिंगल स्टेट होते हैं। ठीक है, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑपरेटिंग विद इन अ सिंगल स्टेट। तो क्या इन दोनों पे ही आर्टिकल ये आर्टिकल 243 ZH से ZT तक जो है वो अप्लाई करता है? तो ये जो है ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कि जो ये प्रोविजंस है वो सिर्फ मल्टी स्टेट पे करते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है, इसलिए जो है वो उसकी पावर यूनियन गवर्नमेंट को नहीं दी गई है। इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि लॉ कमीशन, 23rd लॉ कमीशन का गठन रिसेंटली किया गया है। 23rd लॉ कमीशन का गठन किया गया है, इसलिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द लॉ कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लॉ कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इस्टेब्लिश्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये नॉर्मल जो है मतलब ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट के थ्रू बनती है, तो इसलिए जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। ओके, फिक्स्ड टेन्योर के लिए बनाया जाता तो रिकमेंड लीगल रिफॉर्म। ये जो है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट। जनरली 2 या 3 साल के लिए जो है लॉ कमीशंस बनाए जाते हैं और उनका स्पेसिफिक जो है टाइम में वो जो है चूज करते हैं कि ठीक है दीज आर दी एरियाज वी आर गोइंग टू वर्क, और उन एरियाज में वो जो है लीगल रिफॉर्म्स को जो है रिकमेंड करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन, recommendation of the law commission they are binding on the government. Third statement says recommendation of the law commission are binding on the government. Then again जो है ये एक incorrect statement है। क्यों? क्योंकि recommendations जो है वो generally advisory in nature होते हैं, they are not binding in the nature। ठीक है, so this is an incorrect statement। तो correct option जो है वो है option B, यानी कि
2 only. Okay, so these were the so now we have completed in this series up to 50 questions. So we are going to meet very soon, where we will be discussing questions from 51 to 75, and before the exam we will be completing this series of 100 questions. Okay, so I request you all to subscribe to the channel, hit the bell icon, as well as join our Telegram community for any personal clarification that you have. All right, I will see you soon. Thank you.